Good evening, everyone. So today we will be discussing the extension of the previous work which we have done. So I think I'm audible. Yes, you can respond simultaneously as in when required by raising your hands instead of unmuting your system. So in the previous few lectures, we started with the introduction to MS Excel. Okay, so step by step we are following the basics to MS Excel. So our main criteria was to start with the introduction to MS Excel. Then I'm just adding everyone. Okay, just 1 minute. Let everyone join. Okay, now I'm sharing my screen. Good evening, everyone. This one today I'll just share my entire screen. Okay. So till now, what we did is in the course Mastering to MS Excel from Basic to Intermediate, we started with the introduction to MS Excel. Yes, that is in our module 1. We started with the overview of Excel, then importance and application in business and personal use. Then in the MS Excel, we started exploring interface, that is what is workbook and worksheet. Then we studied different ribbons, toolbars, overview. Then how to create a file, then saving and opening in Excel files. These were some of the basic things that we started. We even started with uh, how to get into the worksheet. So we started from that level of basic. Then in the basic spreadsheet operations, we started with how to enter the data in the form of text, number, or dates. Then how to copy paste the data using the drag fields. This we have already done. Then modifying row columns height weight, that is uh, formatting the cells, we have already started. Then in the first module last, we have done how to undo and redo. And I have also informed you about how many times an undo can be done in the MS Excel. And in module 2, we started with working on data and formatting. We started with changing the fonts, font size, color, bold, italic, everything. Then alignments, then merging, unmerging this text, then number formatting, and then conditional formatting with uh, different highlighting cells based on different criteria, taking different examples. Then managing the worksheets, that is inserting, deleting, renaming. I'm just recalling all the topics that we have taken. Then copy pasting using the data across worksheets. Then how to fill blanks. If these kind of topics we have seen, we have used COUNTIF function also and various count functions. If you have problem in any of the already taken uh, topics, you can go through the video shared, or you can share the information in the WhatsApp. We'll again recall all these things. Okay. Then in the basic page setup, we have seen when we want to print any page, what kind of setup we want. You want to print the based on orientation, portrait, landscape, that also can be done. Then you see the print preview. If it does not work the way you want, we go for the print settings. Also, similar to MS Word, we see how the headers and footer can be applied in the MS Excel. Then we worked on the basic formulas in module 3 and the basic functions, that is creating formulas using various plus, minus, multiply, division operators. Then referencing the relative and absolute data. Then what is the use of various parentheses when you have n number of different uh, loop formulas in case of the complex mathematics. Then in case of simple mathematics, we had various functions like sum, average, count, maximum, minimum. Then logical functions were also studied, that is if, and, or. And we have also taken the amalgamated
logical function, that is if and together, if and or together. Then concatenation, that is text functions are studied. Also, I have sent you a PDF based on the error handling and formulas. In module 4, that is data analysis and visualization, I'm just repeating the topic so that the today's topic correlates you with what exactly we are going to do. Okay, so don't just keep the system on and move here and there. Be with us so that your learning becomes very effective. So then we went for sorting and filtering data. In sorting data, I'm just adding everyone. You can sort the data in ascending, descending way, whatever you want. Then sorting and multi-level sorting, then filtering. These are all. And for everything, we have a very specialized tool available on the MS Excel. And you have a quick toolbar also. In a quick toolbar, everything is directly available. So it is very easy that you don't have to write the formulas, or you don't have to write various codes to get into these kinds of output. तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक इंटरफेस बना हुआ है, उसके सिंबल्स बने हुए, डायरेक्टली आप सिंबल पे क्लिक करते हैं, बस होता क्या है, एक स्टेप आपको सीखना है। और जितनी भी चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको एक एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, तो बड़ा इफेक्टिवली आप उसको कर पाएंगे। देन वी हैड चार्ट्स एंड ग्राफ्स, बेसिक हमने बार चार्ट्स और कॉलम चार्ट्स देखे थे। देन हाउ टू फॉर्मेट दीज चार्ट्स, टाइटल कैसे लगाते हैं, कलर्स कैसे चेंज करते हैं, लेबल्स, एवरीथिंग। देन क्रिएटिंग कॉम्बो चार्ट्स, एंड वेरी इफेक्टिवली वी हैव आल्सो सीन व्हाट आर स्पार्क लाइंस। ठीक है, स्पार्क लाइंस में आपको बताया था कि व्हेन यू हैव एन नंबर ऑफ डिफरेंट चार्ट्स यू वांट इन अ सिंगल सेल, तो वो स्पार्क लाइंस के थ्रू हम करते हैं। देन इन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी हैव डन how to apply various color scales, icon sets, and data bars. Also, in the conditional formatting, we have seen how to segregate or align your data based on the conditions, such as top rules, bottom rules, duplicate rules. Okay, how to remove duplicates, how to identify blank cells. So these are some of the topics which we have already taken. Again, when you are studying in module 5, that is working with large data set, if you are able to study the small data set, that is if you are able to manage a small, so irrespective of the amount of data set, अगर आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन लगाते हैं, तो चाहे एक सेल में लगाए चाहे 100 सेल में लगाए, the process is exactly the same. So tables in Excel studies. Then data validation हमने कल पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि suppose if you are entering any data, सो हाउ टू प्रिवेंट इनवैलिड डाटा एंट्री। ठीक है, वो हमने कल पढ़ा था कि अगर आप गलत डाटा डाल देते हैं तो वो प्रॉम्प्ट करेगा। सो दोज हु हैव जॉइंड लेट, जस्ट वेरी good evening everyone. So I am just repeating the previous task that we have already accomplished. डाटा वैलिडेशन में एक बहुत अच्छा फीचर होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट का, वो आज हम पढ़ेंगे व्हेन विल बी स्टडिंग, if the time permits, if we study the VLOOKUP command, that is the advanced MS Excel formulas, अगर वो हम स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें उस टाइम पे मैं डाटा वैलिडेशन आपको दोबारा से भी बताऊंगा। अभी जो मैंने आपको इसका फर्स्ट फेज बताया था, मैंने वो ये बताया था कि हाउ टू प्रिवेंट इनवैलिड डाटा एंट्री, कि कभी भी जब हम डाटा एंट्री कर रहे हैं और कुछ डाटा गलत डल जाता है या आप गलत टाइप कर देते हैं, तो आपको प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो एक डायलॉग बॉक्स देता है जो कि दिखाता है कि आपने जो डाटा डाला है वो गलत है। उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए डाटा वैलिडेशन हम यूज करते हैं। लेकिन डाटा वैलिडेशन का एक और इफेक्टिव फीचर होता है, दैट इज सेटिंग डाटा वैलिडेशन रूल्स। यानी कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है नेम्स की, प्रोडक्ट्स की, कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एक एरो क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाए। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। So today's our main topic is we will be studying introduction to pivot tables, then how to create pivot tables to summarize data, modifying and updating pivot tables, then using pivot charts to visualize data. तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हम पढ़ेंगे कि पाइवेट टेबल्स क्या होते हैं और पाइवेट चार्ट्स क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, और how these things are very effectively used in our day-to-day life to make any kind of calculations and uh, data interpretation very easy. That means कि हम
कोई भी हमारे पास एक बल्क डाटा आ गया है, आपने उसको मॉडिफाई करके बड़ा इफेक्टिवली डाटा बना दिया है। अब क्या होता है कि आपको उस डाटा में से आपके लॉजिकल डाटा को फैच करना है। तो उस लॉजिकल डाटा को फैच करने के लिए कि सपोज कुछ भी एग्जांपल, अभी हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि सपोज आपके पास एक डाटा है जिसमें नेम्स भी हैं, 10th के मार्क्स भी है, 12th के मार्क्स भी हैं, शहर का नाम भी है, सिटीज, एवरीथिंग इज देयर। आप हॉस्टलर है, डे स्कॉलर है, सब डाटा है उसमें। और आपको फैच करना है कि कितने हॉस्टलर्स हैं, कितने लोग किस ब्रांच में है, कौन किस कोर्स में है, कितने बच्चे किस शहर के हैं, जो जिस शहर के हैं उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और उस शहर के हैं उनमें से गर्ल्स कितनी है। तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल सर्च करना है तो पाइवेट टेबल्स की मदद से आप डायरेक्टली उस तरीके के कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो दैट इज वेरी इफेक्टिव। सो विल स्टार्ट विद पाइवेट टेबल डायरेक्टली, एंड देन जब आपको टेबल बनाना आ जाएगा तो फिर आपको पाइवेट चार्ट भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद पाइवेट टेबल्स। ओके, सो today's our today topic, that is model 5. It covers the creating pivot tables to summarize data, then modifying and updating the pivot tables, कि जैसे जैसे हम डाटाज अपडेट करते हैं तो आपका फाइनल आउटपुट किस तरीके से अपडेट होता है। तीसरी चीज कि जब आपको पाइवेट टेबल्स बनाने आ जाते हैं तो उस तरीके से आप हाइब्रिड चार्ट्स कैसे बनाते हैं, जिनको पाइवेट चार्ट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज पाइवेट टेबल्स? ठीक है, पाइवेट टेबल, इट इज अ डाटा समराइजेशन टूल। दैट मीन्स आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग लार्ज डाटा है, उसको जब आप समराइज करने की कोशिश करते हैं, दैट टाइम यू यूज अ वेरी इफेक्टिव टूल इन MS Excel, that is a pivot table. Pivot table is a data summarization tool that is used in the context of data processing. ठीक है, then pivot tables are used to quickly summarize, sort, recognize, group, count, total और average data stored in a database। यानी कि कोई भी एक आपके पास database है, आपने बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारी रोज का एक डाटा टेबल बना लिया है, उसको बहुत फास्ट आप समराइज कर सके, सॉर्ट कर सके, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आप आउटपुट, कि मैं चाह रहा हूँ कि केवल मेरे को स्टूडेंट्स के नाम मिले, केवल बॉयज के नाम मिले, कुछ भी मतलब रैंडम आपके पास डाटा है, किसी भी तरीके से आप उस डाटा को फैच कराना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितना काउंट है, टोटल क्या है, उसका एवरेज क्या है। So that can be easily done using pivot tables. Then it allows its users to transform columns into rows and rows into columns whatsoever। ठीक है, ट्रांसपोज तो बहुत छोटी चीज हो गई। इट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग डाटास। एंड कोई किसी भी डाटा को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हम पाइवेट टेबल्स का यूज करते हैं। और जब आप पाइवेट टेबल्स बना लेते हैं, देन यू गो फॉर पाइवेट चार्ट्स। व्हाट आर पाइवेट चार्ट्स? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फ्रॉम पाइवेट टेबल्स एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेक्टिव। ठीक है, तो पाइवेट टेबल इन शॉर्ट क्या है कि आपके अभी मैं आपको एक प्री डिफाइंड टेबल दे देता हूँ। ठीक है, उस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो हम डायरेक्टली एक्सेल पे मूव करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू एक्सेल शीट डायरेक्टली। सो विल स्टार्ट विद today's topic, that is pivot tables. I'm expecting everyone to join very fast. Actually, these things take time. Just try to make yourself comfortable for another 1 minute. In another 1 minute, very fast. Then we will start with pivot tables. Very fast. Try to make yourself comfortable here. Otherwise, I will lock this particular ठीक है meeting. That means I'll not allow anyone to move in or move out also. So I'm just taking the attendance in the beginning. I'll take it the last also. And this is the attendance which has been automatically taken from the MS Teams. ठीक है, so it is not like कि आपका present नहीं लगा या आपका absent नहीं लगा. It is automatic. So I've taken the attendance. I'll again take the attendance after every 30 minutes. So we'll start with MS Excel pivot tables and pivot chart. Just
I'm making you sit for 30 seconds, then we'll start. If I take the class for 2 hours, I keep adding new people for the complete 2 hours. Okay. Mm. So coming to pivot tables directly. So suppose you have a random table. Is my screen visible? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. So suppose we have a long table in which we have uh, different columns representing different data taken randomly. Just to explain you, it is an example. It is not an actual data. It is like suppose we have a number of columns. We have columns A to G, where A represents the serial number, B represents the number of students, sorry, name of students, then branch, 12th percentage, their hometown, are they hostler or day scholar, or what is their fees in INR. Okay, so we have a list of 21 students whose branch, 12th percentage, hometown, whether they are hostler or day scholar, or this is kind of details are given. So now suppose we want to identify ki how many students out of these are in mechanical. Okay, how many students are from say different cities, say how many are from Dehradun, how many students who are computer science students and are from Dehradun, how many day scholars are from Dehradun, how many day scholars are there in say mechanical engineering, what is the total revenue, देखना n number of questions that you can generate. ठीक है, कि सपोज आपसे पूछा जाए कि बताइए मैकेनिकल से टोटल कितना फीस कलेक्शन हो रहा है, या आप ये बताइए कि मैकेनिकल ब्रांच के कितने बच्चे डे स्कॉलर हैं, या बताइए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि हॉस्टलर हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो डे स्कॉलर्स हैं, नाम बताइए। तो एन नंबर ऑफ अगर इस तरीके की क्वेरीज जब जनरेट होती हैं तो उसको इजीली सॉर्ट करने के लिए देर इज अ वेरी इफेक्टिव टूल इन एमएस एक्सेल, दैट इज अ पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल को यूज कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप टेबल पे कहीं भी क्लिक कीजिए, ठीक है, एम आई ऑडिबल? Yes, एम आई Yes, sir. ऑडिबल? sir. ओके, सो क्वेरी आपको समझ आ गई, ठीक है, कि मेरे पास एक रैंडम डाटा है बड़ा सा, जिसमें कि दुनिया भर के एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अराइज्ड, दैट कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वे। तो उसको इजीली देने के लिए वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन एमएस एक्सेल, दैट इज अ पाइवट टेबल। कैसे यूज करते हैं पाइवट टेबल को, आप रिबन में एक टैब होता है इंसर्ट, ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, आप इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर पे क्विक टूल बार में एक ऑप्शन होता है पाइवट टेबल, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं इंसर्ट पे यू गेट दी पाइवट टेबल, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस ले जाके इस पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है, विच सेज दैट सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो अभी क्या है, क्योंकि मैंने इस टेबल के बीच में सिलेक्ट किया था, इसने ऑटोमेटिकली मेरा टेबल रेंज सेलेक्ट कर ली है फ्रॉम से A2, दैट इज सीरियल नंबर से लेके लास्ट, ठीक है, G23 तक उन्होंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया है। फिर वो पूछता है कि चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड, कि वो पूछता है जो अब आप करना चाहते हैं वो कहाँ पे प्लेस हो, इसी वर्कशीट में या न्यू वर्कशीट में। तो हम न्यू वर्कशीट करते हैं, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव फॉर यू टू लर्न। फिर आप उसको न्यू वर्कशीट ऑलरेडी सिलेक्टेड है,
इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे एक न्यू वर्कशीट खुल जाती है, आप यहाँ देख सकते हैं शीट 12 के नाम से एक न्यू वर्कशीट इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये वर्कशीट हमारी क्या है, दिस इज अ पाइवट टेबल फील्ड्स। अब क्या है, सपोज मैंने जैसे आपको बताया कि हमें n नंबर ऑफ क्वेरीज जनरेट करनी है, तो क्या क्या क्वेरीज हो सकती है। सपोज मेरे को इसमें पाइवट टेबल फील्ड्स में इस साइड सब कुछ आ जाता है। ठीक है, सीरियल नंबर, जितने भी आपके कॉलम्स थे 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी आपके कॉलम्स थे वो पाइवट शीट में आ जाते हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है कि मैं क्वेरीज जनरेट करना अगर स्टार्ट करूंगा तो बहुत इजी होता है, डायरेक्टली आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इन स्टूडेंट्स की ब्रांच क्या है ना। तो आप डायरेक्टली इनके नीचे इनकी ब्रांच लिखी हुई आ जाती है। अनदर वेरी इफेक्टिव इज लाइक आप ये देखना चाहते हैं कि इनमें से किस किस का होम टाउन कैसे है, आप देख लेते हैं। बट इससे भी ज्यादा इफेक्टिव क्या है, सपोज इसको अनसिलेक्ट करना है, अनसिलेक्ट कीजिए कि अभी क्या है, आप यहां से अगर आपकी जो पहले वाली टेबल थी, आपसे पूछा जाएगा कि कितनी ब्रांचेस हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप इस रो में फिल्टर लगाएंगे, फिर आप चेक करेंगे। लेकिन प्राइवेट शीट में क्या होता है, आप जैसे ही ब्रांच पे क्लिक करते हैं तो वो सेपरेट डाटा ले लेता है। वो ये बता रहा है कि आपके पास जो आपका टेबल है इसमें 3 ही ब्रांच की बात हुई है, CS, मैकेनिकल एंड ट्रिपल ई। ठीक है, अब आप ये जानना चाहते हैं कि CS, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कितने कौन बच्चा किस टाउन में रहता है ना। तो CSC के बच्चे भी सभी टाउन में रहते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी बच्चे सभी टाउन में रहते हैं। अनदर थिंग विच इज वेरी इफेक्टिव हेयर इज, अगर आप इसको काउंट करना चाहें, ठीक है, किसी भी चीज को काउंट, कि सपोज मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि फीस का रिवेन्यू कितना आ रहा है CSC से, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, एक तो ये हमें सम दे देता है। ठीक है, कि CS के डिपार्टमेंट से कितना रिवेन्यू आ रहा है, इलेक्ट्रिकल से कितना आ रहा है, मैकेनिकल से कितना आ रहा है। और दूसरा इफेक्टिव थिंग इज वो उनका टोटल भी कर दे रहा है और लास्ट में ग्रैंड टोटल भी करके दे दे रहा है। अगर आप इस टेबल पे भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ से लेके नीचे तक सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्रैंड टोटल जो है 21 एंट्रीज का, दैट इज 2095800, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप करके दे दे रहा है। ठीक है, ब्रांच की जगह अगर मैं चाहूँ कि होम टाउन से पता चल जाए कि किस शहर से कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये पता लगाना चाहें कि हॉस्टलर, इसमें से हॉस्टल से कितना हो रहा है और डे स्कॉलर के थ्रू कितना हो रहा है, आप जनरेट कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी बात हो गई है ना, कि आपने क्या किया कि कोई भी डाटा लिया और उसको एंटर कर लिया। अब क्या है, सपोज मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस डाटा को मैं इस तरीके से सेग्रेट ग्रेड करूं कि मैं कॉलम्स और कुछ भी आप शेयर कीजिए। सपोज मैं चाहता हूं कि हॉस्टलर्स जो है वो एक अलग कॉलम बन जाए, कि जितना भी मेरा डाटा इस तरीके से सेग्रीगेट हो जाए कि डे स्कॉलर और हॉस्टलर। ठीक है, और उसके बाद मैं उनके ब्रांचेस को सॉर्ट करूं। ठीक है, तो ब्रांच को अगर आप टोटल देखना चाहेंगे तो वो टोटल भी बता देगा। टोटल इज कि हाउ मेनी आर, सपोज आयुष इज अ हॉस्टलर, तो 1 इज हॉस्टलर, इफ एनीबडी इज हॉस्टलर सो विल नॉट बी अ डे स्कॉलर। तो आप बहुत बहुत इफेक्टिव वे में अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई जस्ट गिव यू 15 मिनट्स। मैं एक आपको प्रैक्टिस वो शेयर करता हूँ, ये वीडियो देखिए आप। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इट इज अ डायनेमिक ओरिएंटेशन। व्हाट इज डायनेमिक ओरिएंटेशन, कि अगर आप यहाँ पे कोई चेंज करते हैं पाइवेट टेबल में, तो वो आपकी शीट में भी चेंज होता है। बट शीट में वो कब चेंज होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज आपने क्या किया, नेम के आगे फीस मैंने लिख दी है। ठीक है, आयुष हैज 91700, तो यहाँ पे क्या है, आयुष हैज 91700। सपोज इसकी जगह आप लिखते हैं 10,000। ठीक है,
तो अभी क्या होगा, जब आप अपनी शीट पे जाएंगे पाइवेट, तो इट विल नॉट बी अपडेटेड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी आप जब पाइवेट चार्ट पे काम करेंगे तो आपको अपडेशन करना बहुत जरूरी है। और अपडेट करने का तरीका क्या होता है कि आप पाइवेट टेबल एनालाइज पे जाएंगे। ठीक है, जितनी बार भी आप टेबल खोलते हैं, आप पाइवेट टेबल एनालाइज पे जाइए और उसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करते ही आपका जो डाटा है दैट विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड। कि मैंने यहाँ पे जैसे फीस 10,000 दिखाया, तो आपकी शीट में भी अपडेट होगा। तो आप कभी भी जब प्रिंट निकालते हैं या कुछ करते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपनी एक्सेल शीट को, अगर आपने पाइवेट टेबल यूज किया है, तो हर बार पाइवेट टेबल एनालाइज पे आके उसको रिफ्रेश करना है। ठीक है। अनदर थिंग इज, अभी आपने क्या किया, यहाँ पे फील्ड्स देख रहे हैं आप, 7 फील्ड्स हैं टिल फीस। ठीक है। और आप यहाँ पे एक और सपोज कॉलम ऐड करते हैं, कुछ भी से यस और नो का। ठीक है। और आप इसमें कुछ वैल्यूज लिखते हैं। सपोज मैं लिख रहा हूं कि वेदर ही गॉट स्कॉलरशिप, यस। और कुछ में मैंने लिख दिया नो। ठीक है। कुछ में मैंने लिख दिया नो। अब अगर मेरे को देखना है कि कितने हॉस्टलर्स को, कितने हॉस्टलर्स को हाउ मेनी हॉस्टलर्स आर गेटिंग दी स्कॉलरशिप, हाउ मेनी डे स्कॉलर्स आर गेटिंग दी स्कॉलरशिप, इस तरीके की अगर मेरी कोई क्वेरी जनरेट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है। तो उस केस में अब मैंने यहाँ तो ऐड कर दिया, लेकिन मैं अपनी शीट पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को वो नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं आप। ठीक है। यहाँ पे आपको यस और नो का एक कॉलम दिख रहा है एच, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट आपका जो पाइवेट टेबल का आपने जो लिया है, वहां पे अभी वो अपडेट नहीं हुआ है। तो उस केस में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करेंगे, पाइवेट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, चेंज डाटा सोर्स करेंगे। जैसे ही आप डाटा सोर्स चेंज करने का बोलेंगे, तो इट विल शो यू कि अभी तक वो यहाँ तक सिलेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, उसको अपडेट करना है, सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, तो फिर आपका एक और स्टार्ट हो जाता है, दैट इज यस और नो वाला, है ना। और दूसरी वेरी चीज है, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, दैट विल शो यू विद द हेल्प ऑफ say one effective video I'll be sharing. So just see what all we can do with the help of this, and then we'll study slicer also in this same video. Okay, I'm just adding those things here.
आपको आप आप लोग लगातार ऐड ऑफ होते रहते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट 1 मिनट। हाँ, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि क्रिएट पाइवट टेबल का एक बॉक्स बना हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में बताऊंगा। पाइवट टेबल एक एडवांस एक्सेल एप्लीकेशन। जस्ट वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर दी 15 minutes. ठीक है, if you have any kind of problem just ask me. It is just the repetition of words that I have already taken. का पार्ट है। ठीक है, ये हर तरीके की एडवांस डाटा एनालिसिस के काम आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइवट टेबल क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। पाइवट टेबल डाटा समराइजेशन के लिए सबसे इफेक्टिव टूल है। किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स डाटा को हम सॉर्टिंग, फिल्टर, मल्टीपल फिल्टर, कंडीशंस लगाना, रिकॉग्नाइज करना, ट्रांसपोज करना, सब हम पाइवट टेबल की मदद से कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा हो, उसको इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। पाइवट टेबल की सबसे अच्छी एप्लीकेशन क्या है कि हमें किसी भी तरीके की क्वेरी सॉल्विंग हो, जैसे कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा डाटा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक ये डाटा है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रांच, होम टाउन, हॉस्टलर्स, फीस, और इसी तरीके से हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा आ जाता है जिसमें कि हजारों बच्चों का डाटा होता है और हमसे अलग अलग तरीके से उस डाटा को मांगा जाता है। कि कभी ऐसा बोला जाता है कि हमें ये बताइए कि किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं, किस ब्रांच के कौन से स्टूडेंट्स कौन से शहर से हैं, कितने, किस ब्रांच से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है, किस शहर से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है, किस हॉस्टल, कितने बच्चे हॉस्टलर हैं, कितने बच्चे डे स्कॉलर हैं, मैकेनिकल में कितने बच्चे हॉस्टलर हैं। मतलब इस तरीके की किसी भी तरीके की क्वेरी जब हमारे पास आती है तो हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं और वो क्वेरी बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि पाइवट टेबल को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो एक्सेल में पाइवट टेबल जो है, इंसर्ट कॉलम में
आप देख सकते हैं ऊपर इंसर्ट में पाइवेट टेबल होता है, इंसर्ट टैब में पाइवेट टेबल। आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाके पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि क्रिएट पाइवेट टेबल का एक बॉक्स बना हुआ आ गया, जिसमें कि हमें दो चीज़ भरनी होती है, एक सिलेक्टेड टेबल और रेंज। बाय डिफॉल्ट देखिए इसने हाईलाइट कर दिया है रेंज, जो कि हमारे टेबल की रेंज है, ठीक है। इस रेंज को हम मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद चूज वेयर यू वांट द पाइवेट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। ये बता पूछता है हमसे कि आप ये पाइवेट टेबल जो बनाना चाह रहे हैं ये इसी वर्कशीट में आप चाह रहे हैं या न्यू वर्कशीट में। न्यू वर्कशीट में क्या होगा कि एक शीट यहाँ पर नीचे जनरेट हो जाएगी, जिसमें कि आप अपनी क्वेरीज समराइज कर सकते हैं, और या फिर आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे आपका पाइवेट टेबल यानी कि जो टेबल आप बनाना चाह रहे हैं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट करके ओके कर देते हैं। न्यू वर्कशीट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक नई शीट आ गई है, जो कि हमारी प्राइवेट शीट है। और जैसे ही ये शीट आती है तो इससे रिलेटेड हमारे एनालाइज, डिजाइन, व्यू सब आ जाता है। जितने हमारे कॉलम्स थे मेन शीट में, ठीक है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, ब्रांच, होम टाउन, हॉस्टलर, फीस, ये सब हमारा यहाँ पाइवेट टेबल फील्ड्स में आ जाता है। तो अब इस पाइवेट टेबल फील्ड्स में क्या होता है, पाइवेट टेबल फील्ड्स में क्या होता है कि हमारे पास फिल्टर होता है, कॉलम्स होता है, रो होता है, वैल्यूज होता है। वैल्यूज में हम केवल न्यूमेरिक वैल्यूज डालते हैं, ये और पाइवेट टेबल की मदद से हम किसी भी चीज का ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए, हम जैसे क्लिक करेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स रोज में आ गए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किसकी क्या ब्रांच है, तो हम ब्रांच पे क्लिक करेंगे, फिर दिख जाएगा कि से फॉर एग्जांपल आयुष की ब्रांच सीएससी है, दिव्या की ब्रांच मैकेनिकल है, गगन की ब्रांच मैकेनिकल है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल में आयुष की ब्रांच सीएससी है, आयुष की ब्रांच सीएससी है। किस होम टाउन से है, आयुष सीएससी से हल्द्वानी से है। आप अपनी मेन शीट में देखिए आयुष सीएससी हल्द्वानी से है, ठीक है। फिर डे स्कॉलर है, हॉस्टल डे स्कॉलर है। अब हम जैसे ही इस शीट में क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि वो डे स्कॉलर है। ऐसे ही जब हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे ये जाएगा। सपोज हमारे पास क्वेरी आती है, अब किसी भी तरीके की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम पाइवेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अभी अब मैंने आपको बताया कि मैं बाय डिफॉल्ट अगर इसको क्लिक करूंगा तो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, ये अलग अलग रोज में आ जाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप इसको उठा के कॉलम्स में कर देंगे तो ये अलग अलग कॉलम्स में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि ट्रांसपोज करना भी बड़ा आसान हो गया, कि जितनी भी रोज थी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये भी एक इसका बड़ा इफेक्टिव टूल है। सपोज अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं पहले ब्रांच करूंगा फिर स्टूडेंट्स करूंगा तो क्या करेगा, जैसे सीएससी में स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देगा, इलेक्ट्रिकल में स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देगा, मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट दे देगा। अलग अलग ये क्या करता है, इसको सॉर्ट कर देता है। अगर प्राइवेट टेबल का मैं इस्तेमाल ना करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, फिर अलग अलग तीनों को और फिर उसे बनाना पड़ेगा। और इससे एक अच्छा फायदा क्या होता है प्राइवेट टेबल से, कि हम इस डाटा को एज इट इज प्रिंट भी कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे ये पता करना है कि किस ब्रांच से कितने बच्चे हॉस्टलर्स हैं या कितने बच्चे डे स्कॉलर्स हैं। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा हॉस्टलर्स पे तो ये क्या दे देगा कि हर ब्रांच में कुछ बच्चे हॉस्टलर और डे स्कॉलर हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं ये अगर देखना चाह रहा हूँ कि किस ब्रांच से मुझे कितना रिवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, यानी कितनी फीस आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, फीस को उठा के वैल्यूज में रख दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा कि कंप्यूटर साइंस से टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है, इलेक्ट्रिकल से टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है, और मैकेनिकल से टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है। यानी कि अगर मैं मेन शीट में आऊँ और मैं यहाँ पर से फॉर एग्जांपल फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है, फिर मैं
केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE को लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इन सब का सम करता हूँ, तो मुझे दिख जाएगा कि इट इज समवट 819700, ठीक है, लेकिन मेरी शीट ने उसे डायरेक्ट दे दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो इसने डिटेल्स भी दी हैं और यहाँ केवल 819700 आ गया। तो इसके लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि जो भी आप डाटा को एक्सपैंड करना चाहते हैं कि ये डाटा कहाँ से आया, कि ये वैल्यू कहाँ से आई या ये वैल्यू कहाँ से आई, और आप देख पाएंगे कि ग्रैंड टोटल भी दे रहा है वो। ग्रैंड टोटल मतलब अगर मैं फिल्टर रिमूव कर रहा हूँ और इस पूरे का टोटल देख रहा हूँ, तो वो जैसा कि यहाँ दिख पा रहा है आपको 2095800, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 2095800। तो ये बड़ा इफेक्टिव टूल है कि हम किसी भी तरीके के डाटा को इजीली सॉर्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर अब यही एग्जैक्ट वैल्यूज हमें चाहिए कि कंप्यूटर, ये जो डाटा आया है 819700, दैट इज टोटल फीस कलेक्शन फ्रॉम CSE, तो ये किस किस का है, तो हमें क्या करना है, सीधा इस डाटा पे डबल क्लिक करेंगे तो एक नई शीट और क्रिएट हो जाएगी और वो हमको इसकी इलेबोरेटेड डिटेल्स दे देगा। ठीक इसी तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रिकल का चाहिए तो ये 477300 कहाँ से आया, डबल क्लिक कीजिए, एक और शीट क्रिएट हो जाएगी और वो हमें ये डाटा दे देगी और हम इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं अगर ये देखना चाह रहा हूँ कि सपोज फॉर एग्जांपल कि टोटल हॉस्टल के कितने बच्चों ने से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले हॉस्टल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यानी कि मैं हॉस्टल सेलेक्ट करूँगा कि हॉस्टलर है या डे स्कॉलर, और फिर मैं इसका फीस वाला पार्ट जो है उस पर क्लिक करूँगा या मैं उसको वैल्यूज़ में ले जाऊँगा। तो क्या पता चल जाएगा मुझे कि डे स्कॉलर्स से कितना कलेक्शन हो रहा है और हॉस्टलर से कितना कलेक्शन हो रहा है। इसी तरीके से मैं इसको और इलेबोरेट कर सकता हूँ कि से फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले अनसेलेक्ट कर देता हूँ, किसी भी तरीके की क्वेरी जो है वो आप इससे इजीली कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने पहले ब्रांच लिया, फिर मैंने क्या किया, मैंने हॉस्टलर डे स्कॉलर का एक कॉलम बना लिया, तो डे स्कॉलर अलग हो गया, हॉस्टलर अलग हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पता चल जाएगा कि किससे कितनी फीस कलेक्ट हो रही है, तो यानी कि कंप्यूटर साइंस के डे स्कॉलर से 91700 हो रहा है, कंप्यूटर साइंस के हॉस्टलर से हमें इतने पैसे आ रहे हैं और टोटल ये आ रहा है। यानी कि हम अपने डाटा को कितना इजीली, आप देख सकते हैं कि कितना इजीली उस डाटा को हम समराइज कर पा रहे हैं। अदरवाइज हमें क्या करना होता, डबल फिल्टर लगाना पड़ता, कि हम क्या करते हैं, पहले यहाँ इस मेन शीट में फिल्टर कमांड मैंने आपको पहले सिखा रखी है, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस को ही केवल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पे आके केवल डे स्कॉलर सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो 91700 कंप्यूटर साइंस के डे स्कॉलर 91700, ठीक है। उसी तरीके से फिर मैं क्या करता, इसको अनसेलेक्ट करता और फिर मैं हॉस्टलर सेलेक्ट करता, ओके करता, और फिर मेरे को इसका ग्रैंड टोटल के लिए यहाँ सम का फॉर्मूला लगाता, इक्वल्स टू सम, और फिर मैं ये सारी वैल्यूज सेलेक्ट करता, एंटर करता, और मुझे ये डाटा मिलता है जो कि मुझे यहाँ डायरेक्टली मिल जा रहा है, ठीक है। जो सपोज कंप्यूटर साइंस के हॉस्टलर्स का डाटा मुझे जा रहा है, कितना आ रहा है, 728000, वो कितना है, 728000, और इसकी इलेबोरेटिव फॉर्म लाने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल जहाँ पे ये वैल्यू है इसको डबल क्लिक करना है और मुझे वो टेबल एग्जैक्टली मिल जाएगा जैसा कि मैंने डबल फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे गेन किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं वो टेबल मुझे मिल जा रहा है, यस। सो इट इज़ वेरी इजी। वन थिंग मोर, इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं, से फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपकी जो मेन शीट है, ठीक है, मैं फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, आपकी मेन शीट है, इसमें आपने क्या किया कि कोई भी डाटा एडिट किया, से फॉर एग्जांपल गगन मैकेनिकल रुद्रपुर डे स्कॉलर की जगह आपने इसको
हॉस्टलर कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, गगन इसको हॉस्टलर कर दिया। तो अब आपकी शीट से फॉर एग्जांपल नेम, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि हॉस्टलर या डे स्कॉलर, तो गगन जो कि अभी डे स्कॉलर आ रहा है, आपने उसको हॉस्टलर कर दिया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, आपको ऑप्शंस अभी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आप अपने पाइवेट टेबल के, आपका जो मेन टेबल है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, गगन को हॉस्टलर कर रखा है, ठीक है। तो फिर आपका जो पाइवेट टेबल होता है, ठीक है, उसमें एक सेकेंड, इसमें एनालाइज के नाम से कुछ पुराने एक्सेल में इसको ऑप्शंस के उससे आएगा। आपको क्या करना है कि अभी आप देख पा रहे हैं कि गगन को डे स्कॉलर दिखा रहा है, फिर आप उसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि जो पहले डे स्कॉलर था वो अब हॉस्टलर हो गया। मैं एक चेंज और करके दिखा देता हूँ आपको, कि से फॉर एग्जांपल मैं एम ई को सी एस ई करता हूँ, ठीक है, और मैं शीट में ब्रांच भी ले लेता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपने रिसेंट चेंज किया है। तो आप क्या करेंगे, एनालाइज में आएंगे और रिफ्रेश कर देंगे, तो ये सी एस सी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि सपोज अब मैं इसमें एक नई कॉलम ऐड करता हूँ, ठीक है, सपोज मैं इसमें एक नई कॉलम ऐड करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि लोकेशन इन देहरादून या नो, तो मैं इसमें रैंडमली ए बी सी डी कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। मैं केवल एग्जांपल के लिए एक रो ऐड करता हूँ, एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ये कॉलम ऐड कर दिया इसमें, और मैंने इस कॉलम को कॉलम मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। और अब मैं देख अब मैं जब अपने प्राइवेट टेबल में आता हूँ, तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि मेरे वो टेबल यहाँ पे दिख नहीं रहे, ठीक है। मैं एनालाइज पे जाके रिफ्रेश भी करता हूँ, तो मुझे क्या है कि अपना एक और कॉलम जो कि मैंने येस नो के नाम से बनाया वो दिख नहीं रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने जो डाटा सोर्स ले रखा है, ठीक है, वो ए से लेके एफ तक है, ठीक है। रिफ्रेश करने पे ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपने डाटा सोर्स ले रखा है वो डाटा सोर्स केवल ए से लेके एफ तक है। तो अगर आपको ये जी वाला कॉलम भी ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करने से नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम अपने प्राइवेट टेबल में जाते हैं, चेंज डाटा सोर्स पे आके चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सोर्स करेंगे तो वो हमें पुराना वाला सोर्स हाईलाइट करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको नए वाले अपडेट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये येस और नो वाले ऑप्शंस भी हमें दिखाने लग गया। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली आपने सीखा कि पाइवेट टेबल का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पाइवेट टेबल का इस्तेमाल हम उस हर जगह कर सकते हैं जिस जगह पे आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स डाटा है और आपको कोई भी क्वेरी सॉल्व करनी है। तो किसी भी क्वेरी को इजी वे में सॉल्व करने के लिए या इजी वे में गेन करने के लिए हम पाइवेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट डाटा सब कॉम्प्लेक्स डाटा को समराइज करने के लिए हम पाइवेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और कि आपको अगर ये पूरा आप अगर इसको क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पूरा ये टेबल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे
यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर एंड क्लियर ऑल। तो क्लियर ऑल करते ही ये एक नॉर्मल शीट जैसा हो जाएगा और आपका जितना भी प्राइवेट डाटा था वो रिमूव हो जाएगा। और लेकिन इसमें एक बेस्ट पार्ट क्या है कि आपने जो प्राइवेट टेबल से डाटा समराइज किया था वो सब आपके पास रहता है। सो होप इट इज़ वेरी यूजफुल। So I think you have got a basic to how to use pivot. So and the pivot tables. So once you are aware of using how to use pivot tables, we'll further elaborate it in using how to make pivot charts using the pivot tables. Okay. So those who are practicing, I'm just giving you 2 minutes. आप एक टेबल बना लीजिए, आफ्टर दिस क्लास आप इसको प्रैक्टिस भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी अगर किसी ने नोट किया है तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जस्ट रेज योर हैंड्स, विल आस्क वन बाय वन, टेक 2 minutes टू take your queries. Otherwise, I'll show you how to make pivot charts further using this particular table जो आपने MS Excel पे बनाया है using pivot tables. ठीक है, तो this much is clear. This much is clear to him. Okay. Bipin, yes, you can unmute your system and ask. सर वो एनालाइज का ऑप्शन नहीं मिला। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, अब जैसे ही आप देख रहे होंगे दिस इज माय पाइवट टेबल, ठीक है, तो पाइवट टेबल में आप ऊपर टैब पे सर्च कर रहे होंगे तो आपको एनालाइज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे मेरे आप में दिख रहा है, मेरे में क्यों दिख रहा है, बिकॉज अगर मैं आपको बता देता हूँ, सपोज मैंने अभी इसको अनसेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको भी अनसेलेक्ट कर दिया, और आपकी मैं स्क्रीन ओके ओके सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। सपोज आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, ठीक है। तो जैसे आपकी क्वेरी थी कि आपका आपके नॉर्मल टेबल में तो बाय डिफॉल्ट एनालाइज नहीं दिखता है, लेकिन जब आप पाइवट टेबल लेते हैं तो वहां भी किसी किसी में क्या है कि, ठीक है, वहां पे भी क्या है कि कई बार आपको एनालाइज का ऑप्शन नहीं दिखता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि सपोज मैंने होम टाउन्स ऐड किए और फिर मैंने फीस ऐड कर ली, तो मेरे में यहाँ पे आपको एनालाइज का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपके में हो सकता है कई बार नहीं दिख रहा हो कि आप एनालाइज में जाते हैं, अगर डाटा रिफ्रेश करना है या चेंज डाटा सोर्स करना है तो ये ऑप्शंस नहीं दिखते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपका जो पाइवट टेबल है उस पर कहीं भी आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो आपकी पाइवट टेबल वाली शीट है, इस शीट में आपका बाय डिफॉल्ट क्लिक नहीं होगा, एक बार आप क्लिक करके देखिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एनालाइज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एंड इट विल होल्ड यू इन टू रिफ्रेश एंड टू चेंज डाटा सोर्स, ठीक है। यस सर, थैंक यू। हुआ? यस सर। हाँ हाँ, वही प्रॉब्लम रहती है, और वो अभी मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी बीच में बोलने वाला था लेकिन मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स होती है जब होता क्या है कि अब कुछ सिस्टम्स में अभी तो ये एडवांस एक्सेल फॉर्मेट में आ गया, तो इसमें क्या रहता है, जैसे ही आप पाइवट शीट पे आएंगे तो ये डिजाइन और पाइवट टेबल्स की शीट्स देने लगता है, ठीक है। और इसमें एक बहुत इफेक्टिव टूल होता है, मैं आपको पाइवट चार्ट्स पे आने से पहले स्लाइसर के बारे में बताता हूँ। देखिए, एक इसमें ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर, दिख आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। मैं आपको ये सर एडवांस में बताना चाह रहा था, बट मैं आपको बता देता हूँ, इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। इंसर्ट स्लाइसर क्या है, ये एक फिल्टर होता है दैट इज वेरी इफेक्टिवली यूज्ड, और किसी भी डाटा को फिल्टर करने के लिए ये होता है। फिल्टर करने के लिए क्या मतलब हुआ मेरा, जैसे कि सपोज आपने क्या करा, अभी आपके पास जो ये बड़ा सा पाइवट टेबल था, मैंने से बड़ा सा जो एक जनरल टेबल था, इसमें से पाइवट शीट में आपने बनाया कि देहरादून का डाटा निकाल, सॉरी
सिटी वाइज डाटा निकाल लिया कि सिटी वाइज किस सिटी से कितनी सम फीस इकट्ठी हो रही है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये सेग्रीगेट हो जाए कि हॉस्टल से कितना हो रहा है या डे स्कॉलर से कितना हो रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम एक स्लाइसर ऐड करते हैं। इंसर्ट स्लाइसर पे जाएंगे, ये पूछता है कि आप किस तरीके से स्लाइसर बनाना चाहते हैं। सपोज मैं ब्रांच का एक स्लाइसर बना देता हूँ पहले आपको। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक सिंपल डायलॉग बॉक्स बनाता है जिसमें कि जितनी भी आपके जनरल टेबल में ब्रांचेस थी, जैसे सीएस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांचेस थी, वो अलग अलग टैब्स की फॉर्म में आ जाती है, बटन बन जाते हैं। आपको दिख रहा है, जैसे ही मैं सीएस के जैसे ही मैं सीएस पे अपना माउस लेके जा रहा हूँ, सिलेक्टिंग द सीएस, ठीक है, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिकल देन मैकेनिक। अब क्या है कि मेरे पास ये जो डाटा आपको दिख रहा है, इसमें आप सिटी वाइज अभी देख पा रहे हैं कि सम ऑफ फीस कितनी आ रही है, लेकिन आप खाली ये देखना चाहते हैं इनमें से सीएस से कितना कलेक्शन है। तो आप क्या करेंगे, एक स्लाइसर की मदद से, स्लाइसर में मैंने ब्रांच लिया और जैसे ही मैं सीएससी क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि देहरादून में इट इज 29,6700। लेकिन अगर आपको इसको डायरेक्टली नॉर्मल शीट में करना होता तो आप कैसे करते, पहले आप होम टाउन पे फिल्टर लगाते। ठीक है, आपने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया, आपने होम टाउन को सबको अनसेलेक्ट किया और यहाँ देहरादून कर दिया, ओके किया, फिर सारे केवल देहरादून देहरादून दिखने लग जाते, है ना। उसके बाद आपने क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे सीएस का देख रहे हैं हम, है ना। फिर आप केवल यहाँ पे क्या करते, एक और फिल्टर यहाँ पे लेते और केवल सीएस का लेके ओके कर देते। फिर आपके पास दो फीस आती, फिर आप क्या करते, इक्वल्स टू सम करते और इन दोनों का सम ले लेते। फिर ये आपको एक आउटपुट देता, है ना। इट विल गिव यू सर्टेन आउटपुट, कि what kind of output it will give, it will give you that from Dehradun, if CS is selected, how much output we are getting। ठीक है, ऐसे जब इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करेंगे तो हाउ मच आउटपुट वी आर गेटिंग, ऐसे जब मैकेनिकल सेलेक्ट करेंगे तो हाउ मच आउटपुट वी आर गेटिंग। ठीक है, तो ये सब करने के लिए अभी मैंने शायद पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले आप एक्स फिल्टर लगाते हैं, फिर आप वाई फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, तो फिर इन चीजों को सॉर्ट करने के लिए वी हैव डायरेक्टली स्लाइसर्स। अभी स्लाइसर, सपोज मेरे को अनसिलेक्ट करके सारे फिल्टर्स रिमूव कर देता हूँ, और मेरे को इसको डिलीट करने का भी एक सबसे आसान तरीका होता है, जस्ट सेलेक्ट ऑन द स्लाइसर एंड प्रेस डिलीट की फ्रॉम योर कीबोर्ड। ठीक है, तो वो डिलीट हो जाता है। और स्लाइसर को ऐड करने का सब तरीका क्या होता है, आप पाइवट टेबल एनालाइज पे जाइए, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कीजिए। मैं दूसरा स्लाइसर लेके देख लेता हूँ आपको। जैसे ही ओके क्लिक करेंगे, तो अब क्या है, आप अपने पाइवट टेबल्स पे किसी भी तरीके के चेंजेस अगर करते हैं, ठीक है, आप अपने पाइवट टेबल्स पे किसी भी तरीके के चेंजेस करते हैं, सपोज मैं इसकी जगह ये दोनों हटा देता हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, ले लिया कि व्हाट्स एवर यू वांट, मैंने क्या किया कि ब्रांच वाइज फीस सॉर्ट कर ली। ठीक है, ब्रांच वाइज फीस। तो अब क्या है, CS 738000 रिवेन्यू जनरेट कर रहा है ना। तो इसमें से डे स्कॉलर्स के थ्रू कितना आ रहा है, 10,000। तो अगर आपकी नॉर्मल शीट में आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, सारे फिल्टर्स रिमूव करूंगा मैं, जिसको जहां पूछना है पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना टाइम आप सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर नॉर्मल शीट आपकी थी, इसमें आपने पहले देखा कि सीएस के कितने बच्चे हैं, आपने फिल्टर लगाया और सीएससी ले लिया, ओके। ठीक है, अब आपने देखा कि इसमें हॉस्टलर्स ऑलमोस्ट सभी हॉस्टलर्स हैं, है ना, एक डे स्कॉलर भी है। तो आपने क्या, यहाँ पे एक और फिल्टर लगाया केवल हॉस्टलर्स का, ओके। तो फिर आप जब इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो
आप इसका सम जब लेते हैं दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सम विच वी आर गेटिंग हियर। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, मतलब अलग क्यों आ रहा है, इसको ट्राई करके देखिए कि ये 72800 आ रहा है हॉस्टलर्स का, हमारा भी 72800 आ रहा था। कितना आ रहा है हमारा सम? इक्वल टू सम करेंगे अगर इसको, एक बार चेक कर लेते हैं एरर कहाँ आ रहा है। इसको सब, सॉरी, केवल जो फिल्टर्ड है इनका सम लेके देख लेते हैं हाउ मच इट इज कमिंग। इट इज कमिंग 72800 और हमारा कितना आ रहा है प्राइवेट टेबल्स में? कितना आ रहा है? 72800। ठीक है, सीएस की जगह अगर इलेक्ट्रिकल लेते हैं, ये कितना आ रहा है? ठीक है, 315500। और यहाँ कितना आ रहा है? इक्वल टू सम 315200। नीचे भी देख लेते हैं 315500। अभी क्या आ रहा है जब हम सम सेलेक्ट, जब हम एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पूरे का सम नीचे लिखा हुआ आ जाता है हाउ मच इट इज 315500। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे कि आप क्या कर सकते हैं कि स्लाइसर लगा सकते हैं और स्लाइसर के थ्रू आप फिल्टर, स्लाइसर एक तरीके से फिल्टरिंग टूल होता है। ठीक है, तो और ये बटन हम डैशबोर्ड जब बनाते हैं तब यूज करते हैं कि सपोज मैंने एक डैशबोर्ड बनाया मंथ वाइज और मैंने सारे बहुत सारे ग्राफ्स बना लिए। अभी जब मैं पाइवेट टेबल बनाऊंगा तब मैं जब स्लाइसर लगाऊंगा तब आपको देखना कितना इफेक्टिव लगेगा। कि सपोज मैंने क्या किया ठीक है, जब हम पाइवेट टेबल बनाएंगे तो जैसे जैसे हम अपना डाटा एडिट करते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट योर चार्ट्स ऑल्सो। तो और पाइवेट चार्ट्स कैसे वर्क करता है, आपको क्या करना है, पाइवेट टेबल एनालिसिस पे आना है और पाइवेट चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगेन जैसा कि हमने चार्ट्स इन में पढ़ा था, कोई भी आप चार्ट सेलेक्ट करते हैं, सपोज हमने कॉलम चार्ट ही सिलेक्ट किया, आप सिंपली ओके क्लिक करिए। इट विल गिव यू द डाटा की सीएस में हाउ मच द रेवेन्यू इट इज जनरेटिंग। इट इज जनरेटिंग 72800। ठीक है, और इसमें सबसे इफेक्टिव क्या होता है कि अभी तो जैसे ये आपको तीनों ब्रांच का दिखा रहे हैं, आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि खाली मैं सीएस का चाहूँ तो खाली सीएस का भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आप दो का चाहें तो दो का भी दिखा सकते हैं और आप सबका चाहें तो सभी का दिखा सकते हैं। द गुड पार्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज सपोज इफ यू आर एडिटिंग एनीथिंग, ठीक है, अगर आप कोई चीज अनसेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। बेस्ट पार्ट क्या है, आपको मल्टीपल कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते हैं। अभी क्या है, ये डायरेक्टली सीएस के रिवेन्यूज दिखा रहा है। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं ब्रांच की जगह होम टाउन से रिवेन्यू करूं तो डायरेक्टली आपका टेबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों ले लेंगे तो वो कितना इफेक्टिव दिखाने लगता है। आप देखिए कि वो दिखा रहा है कि देहरादून से सीएस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, हल्द्वानी से सीएस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। सो दिस काइंड ऑफ इफेक्टिव टूल, और साथ में उसका टेबल भी आ जाता है। द गुड पार्ट इज उसका टेबल भी आ जाता है। अनदर वेरी इफेक्टिव थिंग इज, आपने ये पढ़ ही लिया था कि चार्ट कैसे एडिट करते हैं, तो ये चार्ट के मॉडिफिकेशन इट इज एंटायरली सिमिलर की जैसा आपने वहां किया था। ठीक है, अब इसमें एड ऑन क्या होता है, आपने टेबल भी बना लिया, चार्ट भी बना लिया। जब हम इफेक्टिव डैशबोर्ड बनाने पे आते हैं, ठीक है, कि आपने क्या किया, मल्टीपल मंथ वाइज आप सेल भी दिखा रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी दिखा रहे हैं, एम्प्लॉयज भी दिखा रहे हैं, सैलरीज भी दिखा रहे हैं, वो सारी चीजें जब आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
I'm just taking the attendance. Kavya, do you want to say something? I'm just taking the attendance. So what we do is, in the very easiest language, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके का एडवांस चार्ट्स अगर बनाना चाहते हैं इन विच रिक्वायर्स एन नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है, एंड डिफरेंट फिल्टर्स, एवरीथिंग, दीज थिंग्स कैन बी वेरी इजीली डन। और जैसा कि मैंने आपको चार्ट के उसमें बताया था कि चार्ट फॉर्मेटिंग के डिजाइन्स में ये बनने के बाद आप लेआउट्स बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। वो जैसा चार्ट का फॉर्मेट था वैसे ही होगा, लेकिन पाइवेट चार्ट में क्या होता है कि आप डिफरेंट कैलकुलेशंस यू कैन डू इजीली ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, सपोज आप इसको हॉस्टल डे स्कॉलर वाइज स्लाइसर भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट स्लाइसर करके, सपोज मैंने स्लाइसर ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या है, आपके पास डाटा आ गया बाय डिफॉल्ट, है ना, टोटल सब कुछ दिखा रहा है, इजीएस्ट वे में दिखा रहा है। सर ये अब आप पावर उसको, पॉइंट में ऐड हो जाते हैं चार्ट? हाँ हाँ, सीधा कॉपी पेस्ट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी कीजिए, ठीक है। सपोज दिस इज माय स्लाइड, मैं एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, इट विल बी पेस्टेड। द बेस्ट पार्ट इज आप इसको एडिट भी कर सकते हैं द वे यू वांट, ठीक है। आपको अगर इसमें डाटा भी एडिट करना है तो एडिट डाटा का ऑप्शन आता है पावर पॉइंट में, दिख रहा है आपको। चार्ट डिजाइन का एक अलग टैब स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आप देखिए अभी नहीं आ रहा है, जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करेंगे चार्ट डिजाइन और फॉर्मेटिंग का अलग अलग टैब शुरू हो जाता है, एंड इट वर्क्स डायरेक्टली दी सेम जैसा कि एक्सेल में वर्क हो रहा है। जैसा वहां पे एडिट करते हैं आप सिमिलर यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप चाहें डाटा एडिट कर सकते हैं, इनफैक्ट चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं आप, कलर्स जो कुछ वहां हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स कैन बी डन हियर इटसेल्फ, ठीक है। आपको हेडिंग है, हेडिंग में कुछ भी लिखना है, इट विल गो द वे यू वांट, ठीक है। आपको कोई भी इजी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसा मैंने कल बताया था कि बोल्ड करना टाइम्स न्यू रोमन करना है, साइज बढ़ाना है ना, उसको ब्लैक करना है। So everything can be done here and there also, directly copy paste, simple copy paste command आप यूज करते हैं, ठीक है। फिर स्लाइसर का आप मतलब समझ गए। व्हेन विल गो इनटू फर्दर डीप, तो मैं आपको स्लाइसर का अलग से ही बता दूंगा कि व्हेन दी इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स आर मेड, तो उसमें क्या होता है कि आपका डाटा ऑटोमेटिकली चेंज करना हो तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप होम टाउन की जगह अगर फीस, है ना, ब्रांच वाइज फीस उसके टोटल्स आ जाते हैं, तो एवरीथिंग आप फर्दर एक्सप्लोर करते रहिए इसको, ठीक है। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे आप सीखेंगे। द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट दी पाइवेटिंग इज, आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स टेबल बनाइए, ठीक है, इंसर्ट में जाइए और पाइवेट टेबल में जाके उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। वहां पे आपको सारे चार्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। जब आप पाइवेट टेबल में आ जाएंगे तो आपको सारे चार्ट्स मिलेंगे, स्लाइसर मिलेगा, फर्दर मैनिपुलेशंस मिलेंगे, सिंपल चार्ट्स भी मिलेंगे आप, एंड दिस थिंग्स एड्स ऑन टू द वे ऑफ थिंकिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स और यू कैन से एडवांस एक्सेल लर्निंग, ठीक है। सो होप इट इज क्लियर। जस्ट रिकॉल जो कि मैंने भी बोला, फॉर 2 minutes आई एम जस्ट taking a 1 minute break, then we'll start with the advanced or this much is okay from my side today. So tomorrow we'll be starting with the, or we can say we have a next topic that I'll be starting, that is the advanced formulas related to the MS Excel. So should I start it today? Just raise your hands if you wanted that it should be done tomorrow. Sir, tomorrow. Tomorrow, sir, tomorrow. Tomorrow. So, okay. So can I expect from you that you will try to recall all these things from your side, है ना। Yes, sir. मेरे को Yes, sir. कुछ ही स्टूडेंट से बहुत इफेक्टिव, मतलब ऐसा नहीं, दिस थिंग डिस्ट्रैक्ट्स मी, ठीक है, बट
these things distracts me. किसी ने आप में से किसी ने recording off कर दिया है, ठीक है, तो you solely are responsible. I want that everyone should please switch on your cameras so that we can take a screenshot for today's. Can you please send this video on the group, sir? Pi table video. After 10 minutes, after the lecture gets over, I'll send. Thank you, sir. Switch on your cameras, everyone, please. Let me share. Where is the screen? Anish, are you getting what I'm explaining, Anish? Yes, sir. Not everything. Just 1 minute. Just 1 minute. So if anybody who wants to submit the activity part also, so they can submit it as soon as possible, because the thing is records are being maintained by the team Samarth. So if you will lag somewhere, जैसे जिन्होंने मेरे को बताया कुछ copy paste हमारी साइड से problem हो रही थी, that we have rectified, है ना? I'm just don't leave. Just don't leave. Just okay. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you Thank very you, sir. much. Thank you, sir. Thank you. Welcome.